जब आप गूगल कैलेंडर पे जाएंगे, आप उसमें ऑप्शन होगा इवेंट क्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 बजे से 5 बजे तक कुछ काम करना है। सो उस डे और उस टाइम पे आप क्लिक कीजिए तो एक इवेंट ओपन हो जाएगा। उस इवेंट में आपने वो एक्टिविटी लिख दी, राइट। अब उसमें एक ऑप्शन है जिसमें गूगल कैलेंडर इज आस्किंग यू, डज दिस एक्टिविटी रिपीट? I have allocated Monday for taking interviews, Tuesday for team meetings, Wednesday for webinars. Hi guys, I'm Kevil Kishan, India's leading business automation coach. And do you want to learn how to plan your week effectively on Google Calendar? I'm going to share with you 3 steps which if you implement, you'll be able to get the best results week on week basis. Let's start with the first step. Understand, as a business owner, you have 2 kind of activities which you do. First is managerial activities, where as a business owner, you're just managing things, managing your team, managing your clients, managing your vendors, giving the work to your teammates and following up with them whether they have done the work or not. Now, these managerial tasks do not help you grow your business. These are the tasks which are just keeping you busy and doing nothing, right? And many business owners, they're spending 90% of the time in the entire week in just these kind of managerial activities. And they forget to do growth-oriented activities. So what are the growth-oriented activities? These are the examples of growth-oriented activities, like making sales calls, hiring good employees, sending proposals, launching new products, learning, focusing on your health, automating your business, tying up with new vendors, right? Collaborations. These activities boost your company growth exponentially, but you are not able to do them. Why? Because you are not planning your week in advance. And in this video, you're going to learn how to plan it using Google Calendar. And believe me, if you're able to watch the full video and implement it, आपके जो ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क हैं आप वीक ऑन वीक बेसिस पे इंप्लीमेंट करने लग जाओगे एंड यू विल बिकम सुपर प्रोडक्टिव, राइट। सो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क को लिस्ट डाउन करना है। आपको पता है कि आप किन किन चीज़ों में बिजी रहते हो, उनको हटा दो। सबसे पहले ये देखो कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एज अ बिजनेस ओनर आपको करनी ज़रूरी हैं, विच विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ऑटोमेशन, ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपको करनी ही करनी है, बिकॉज अगर अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं करेंगे तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, फ्रीडम कभी भी नहीं आ पाएगी। तो एक एक्टिविटी ये हो गई। सेकेंड एक्टिविटी सेल्स, यू वांट टू डू सेल्स एज वेल, या सेल्स के अराउंड प्रपोजल्स भेजने हैं, सेल्स के अराउंड सीआरएम टूल इंप्लीमेंट करना है, तो सेल्स के अराउंड आप कुछ एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। मार्केटिंग में मे बी आपको कुछ वीडियोस बनानी है जस्ट लाइक आई एम डूइंग, राइट। आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है सो दैट थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग आप अपने वेंडर्स, क्लाइंट्स, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को वो भेज पाओ, राइट। न्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइन करनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यू वांट टू हैव वन एक्टिविटी जहाँ पे आप couple of hours per week न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लगाओ, right? Fourth could be HR, where you want to invest your time every week on just taking 2-3 interviews so that you always have a pipeline of good candidates that you can hire and get the best results. Maybe some time you want to allocate to the accounting, where you just want to have a look at the pending payments and cash flow. So marketing, sales, operation, team management and accounting. इन 5 डिपार्टमेंट्स में 1 या 2 ऐसे एक्टिविटीज आप लिखो जिसमें आपको लगता है कि ये करने से आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। पॉज द वीडियो एंड टेल मी व्हाट आर योर टॉप 3 ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज व्हिच यू वांट टू डू इन योर बिजनेस। डन? ऑसम। ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो एक्टिविटीज आपने लिखी हैं, चाहे वो 5 एक्टिविटीज हैं, 10 एक्टिविटीज हैं, उनको कितना टाइम आप पर वीक दोगे वो आपको डिफाइन करना है। अंडरस्टैंड, अगर आपका माइंडसेट रिजल्ट ओरिएंटेड है तो आप फेल हो जाओगे, बट अगर आपका माइंड एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, यू विल सक्सीड। बिकॉज एक बार कोई काम करने से रिजल्ट नहीं आता है, उस काम को बार बार रिपीट करने से सक्सेस आती है। गेटिंग इट? 1 घंटा ऑटोमेशन पे लगाने से कुछ नहीं होगा, हर वीक आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना है। एक बार क्लाइंट को कॉल करने से कुछ नहीं होगा, वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेल्स में। एक इंटरव्यू लेने से आपकी बेस्ट टीम नहीं बन जाएगी, हर वीक आपको 2 या 3 इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे अगर आपको अच्छी टीम बनानी है। तो सेकंड स्टेप में जो आपने एक्टिविटीज लिखी थी उनके टाइम एलोकेट कर लो कि सेल्स में आप कितना टाइम दोगे पर वीक, और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज में कितना टाइम दोगे, हायरिंग में कितना टाइम दोगे, अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में, राइट,
ऑटोमेशन में ऑपरेशन को सिस्टमाइज कैसे करोगे। अब यहाँ पे एक की फंडामेंटल ये है कि अगर आप वीकली 50 घंटे काम कर रहे हैं तो मिनिमम 50% ऑफ योर टाइम यू शुड गिव टू ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दैट इट मीन्स you are not growing your business. You are just doing those activities which are keeping you busy but not helping you grow, right? And indirectly, if I can say, you are rather wasting your time in those activities which are making you unproductive, right? So type done in the comment box अगर आपने इन activities को कुछ time allocate कर दिया है, right? एटलीस्ट 15 से 20 घंटे आपको ये सारे ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क को एलोकेट करके देने हैं। उसके बाद गूगल कैलेंडर ओपन कर लीजिए। दिस इज द थर्ड स्टेप। सो गो टू calendar.google.com। अब जो एक्टिविटीज है उनको ओपन कीजिए, राइट, और कैलेंडर में देखिए कि कौन सी एक्टिविटी कौन से डे पे सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर वीक कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू बिल्ड द बेस्ट टीम टू हेल्प MSME बिजनेस ओनर्स ऑटोमेट देयर बिजनेस। मेरी टीम में भी 35+ एम्प्लॉयज हैं। जब आप गूगल कैलेंडर पे जाएंगे, आप उसमें ऑप्शन होगा इवेंट क्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 बजे से 5 बजे तक कुछ काम करना है। सो उस डे और उस टाइम पे आप क्लिक कीजिए तो एक इवेंट ओपन हो जाएगा। उस इवेंट में आपने वो एक्टिविटी लिख दी, राइट। अब उसमें एक ऑप्शन है जिसमें गूगल कैलेंडर इज आस्किंग यू, डज दिस एक्टिविटी रिपीट और नॉट, राइट। सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड चूज वीक, दैट दिस एक्टिविटी शुड बी रिपीटेड वीक ऑन वीक बेसिस, ऑलराइट, एंड क्लिक ऑन डन। अब आप अपने गूगल कैलेंडर में अगर आपने मंडे का एक्टिविटी प्लान किया है, इवेंट प्लान किया है, तो उसके बाद अपकमिंग मंडेज का अगर आप क्लिक करेंगे डेट पे तो आप देखेंगे वही इवेंट बैक टू बैक अपकमिंग मंडेज में भी लग चुका है। सो वो एक इवेंट जो है, वो एक्टिविटी जो है, वो परमानेंटली गूगल कैलेंडर पे ब्लॉक हो चुकी है। तो आपका वो टाइम आपने उस ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी को एलोकेट कर दिया। सिमिलरली चेक आउट अदर टास्क्स एंड फाइंड आउट कि वो टास्क को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेंसडे फर्स्ट हाफ मेरा फिक्स्ड है कि मुझे एक वेबिनार करना है। ट्यूसडे सेकंड हाफ मेरा फिक्स्ड है कि आई नीड टू टेक अ लाइव क्लास विद माय स्टूडेंट्स एंड गाइड देम एंड हेल्प देम हाउ टू ऑटोमेट देयर बिजनेस, राइट। ट्यूसडे फर्स्ट हाफ आई हैव एलोकेटेड फॉर हैविंग अ मीटिंग विद ऑल डिपार्टमेंट हेड्स। Monday second half is going to hiring, right, good employees and taking the interviews. Same way from Monday to Friday, I've allocated the entire week. And once I have automated my business, 90% of my time is going in growth oriented activities. और जब मेरे बिजनेस में कोई सिस्टम्स नहीं थे तो ना तो मुझे वीक प्लान करना आता था और सारा का सारा वीक बस मैनेजरियल एक्टिविटीज में चला जाता था और पूरे वीक में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता था। आई हैव बीन टू दोस टाइम्स जहाँ पे डेज, वीक्स, मंथ्स गुजर जाते थे और कोई भी नई प्रोडक्टिव चीज़ निकल के सामने नहीं आती थी। आई नो यू माइट बी गोइंग थ्रू दैट फेज, बट इफ यू स्टार्ट implementing this, you will be able to make your week super productive and get the results. Now, to help guide you कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करेंगे, this week I am conducting a business automation masterclass, a 2 hours masterclass where you will discover how can you automate your business using Google Forms, Google Sheets, Google Data Studio and WhatsApp automation. Even if you're a non-technical business owner. You can check out the link in the description. You can share even with your friends as well. Let me revise this once again, these 3 steps. But before that, tell me in the comment box, what are your top 3 growth-oriented activities which you have decided, which you are going to week-on-week basis perform using Google Calendar? Because I might reply back with some valuable tips to you. Right? If you like this video, click on like button, click on the subscribe button as well. So the first activity was plan your growth oriented task. List them now. कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए बट आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। सेकंड, हर एक्टिविटी को टाइम एलोकेट करो कि किसको आपको 30 मिनट देने हैं वीक बेसिस पे, 2 आवर्स देने हैं, 1 आवर देना है, हाफ डे देना है। थर्ड स्टेप इज गो टू गूगल कैलेंडर और उन एक्टिविटीज को रिकरिंग इवेंट बना के गूगल कैलेंडर को बुक कर दो। और उसके बाद क्या होगा, यू जस्ट नीड टू फॉलो योर कैलेंडर एंड यू नीड टू जस्ट परफॉर्म दोस ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज। और अगर आप वो एक्शंस को परफॉर्म करेंगे वीक ऑन वीक बेसिस पे, यू विल सी योर बिजनेस एक्सप्लोडिंग इन 1 or 2 quarters, राइट। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट येस, सक्सेस इज ऑल साइंस, इट्स नॉट एन आर्ट, राइट। और इस साइंटिफिक मेथड से you can make your week super duper productive, and these are the results which I have got once I have
started doing it. I'll be able to scale our organization from just one employee to 35 employees. From one city, we grew to 150 cities in India and 15 other countries. We could scale our revenue from just few lakhs to 10 CR plus per year basis, because I made sure that I need to plan my week and I need to make this week productive day on day basis, right? So if you like this video, make sure you share it with your friends and you share it with your employees as well, because this video will help them plan their week as well. I look forward to see you in the upcoming business automation.